अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, चाचा बूटे के साथ मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। क्या हाल है चाचा जान? खैर शुक्र है मालिक दा। तू सुना भाई किवें? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। आप खैरियत से हो? हाँ जी शुक्र है। कैसा गुजरा आज इलेक्शन का दिन? ओए होए होए होए, बड़ा ही लम्मा दिन सी अज। तो क्या क्या हुआ? ओ यार सानू तो इन्हां ने गधी गेड़े दे विच पाई रखिया। वो कैसे? आ मेरा वोट हैगा फैसलाबाद ते तेरी चाची दा निकलिया तांदले वाले। ओए होए, अच्छा फिर जाया हो गया वोट? ले एमी जाया हो गया, ए एमी जाया हो जाना वा। फिर क्या किया? क्या मैं छड्ड के आया ओनू, मैं कह के आया भी वोट पा के आई नहीं तो मैं घर बढ़ नहीं देनी। वाह 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 वाह, तो फिर वापस कैसे आए आप? आपने कैसे डाला वोट? ओए मैं एक रात पहले छड्ड आया सी। तो रिश्तेदार वाले छड़ के आए सो? नहीं तो होर थाने छड्ड के आउणी सी। अच्छा फिर पाया चाची ने वोट? आहो पाया, उन्हें फोटो खिंच के भेजी अंगूठे दी। तो किसी का भी अंगूठा भेज सकती है? ले एमी भेज सकती है, मैं पछाणदा ओहदा अंगूठा। वो कैसे? वो शांगी आ, क्या? वो 6 ਉਂਗਲਾਂ ਵਾਲੀ। ਉਹਦੇ 2 ਅੰਗੂਠੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਫਰਵਾਈ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ, हाँ जी। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੀ ਆ? बस चाचा जी इनू कहंदे ने जैरीमैंडरिंग। जैरीमैंडरिंग, पूरा मुल्क रो रहा है इस जैरीमैंडरिंग दी वजह नाल। ਇਹ ਕੀ ਆ ਜੀ? ये भी हैगी है, बस छड़ दो। एक बीमारी है जिथे वोटां दा ना छट्टा पाता है, खलारा पाता है, कुछ इत्थे कुछ उत्थे कुछ इधर, इसलिए छड्डो। ਲੈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਵੇ। एक बंदा सी एल्ब्रेट जैरी। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ? ये चाचा जी बड़ी पुरानी गल है, 1812 दी। ਅੱਛਾ ਜੀ, हाँ जी, तुस तो बहुत छोटे जे हो गए उदों। ਫੇਰ ਉਹੀ ਇਲਤਾ। नहीं और तुसी बड़े हो गए। ਓਏ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੰਮਿਆ ਉਦੋਂ। अच्छा चलो, बड़ी पुरानी गल है। ते एल्ब्रेट जैरी गवर्नर हुंदा सी अमरीकी रियासत मैसाचुसेट दा। ਕਿਹਦਾ? ਓਏ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। इसलिए मैं क्या सी, ਤੁਹਾਡਾ कोई तल्लक नहीं है ना, बस छड़ दियो बस। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮਕਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜੈਰੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸੈਲਮੈਂਡਰ ਦਾ ਸੀ। ਸੈਲਮੈਂਡਰ ਹੁੰਦੀ ਛਿਪਕਲੀ, ਕਿਰਲੀ। ਇਹ ਸਾਲਾ ਛਿਪਕਲੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਓਏ? ਛਿਪਕਲੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਓਏ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੜੇ ਬਦਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਓਏ ਉਹ ਕਿਰਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਸਾਲੇ। ਕਿੱਡੀ ਔਖੀ ਆ ਫੜਨੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਓਹੋ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇਹ ਸੈਲਮੈਂਡਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਨੇ ਇਸ ਛਿਪਕਲੀ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਲਾ ਮੌਨਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬਲਾ ਹੈ, ਬਲਾ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚੱਕ ਵੱਡੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਸਮ ਗਲ ਜਾਂਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਾਲੀ ਸੀ। ਕਿ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਦੱਸ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਾਤਾ, ਜਿੰਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਗਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਐਸ ਛਿਪਕਲੀ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ? ਗਵਰਨਰ ਦੀ? ਯਾਰ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹੀ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਰਲੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ? ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਮੱਝ ਦੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਚੱਲ ਮੱਝ ਕਿਰਲੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ कि एक किरली दी शक्ल है। बल्कि मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा ये ज़रा गिला मॉन्स्टर दिखाएं, ये स्लेमेंडर की तस्वीर दिखाएं, बल्कि एक से ज़्यादा तस्वीरें दिखाएं। ओए होए 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 होए, ओए किड्डी जालम ते किड्डी मनूस लगन डई आ। ओए परा दफा कर, ओए जरूर दिखाउणी आ है। बहुत जहरीली ते बड़ी जालिम हुंदी है। ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨੌਂਦਰ, ਕੋਈ ਚੱਕ, ਕੋਈ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਰਲੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਾ।
ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦੰਦੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। अच्छा जी, देखे ना, अब मामला बीच में रह गया। मैं आपके साथ इजहार हमदर्दी कर रहा था। पूरे मुल्क से शिकायत आई है ਇਹ ਕਿਰਲੀਆਂ ਦੀ इसी जेरीमैंडरिंग की कि हर जगह वोटर के साथ बहुत जुल्म हुआ है। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? चाचा जी कहते हैं कि पीटीआई वोट बैंक को हल्का करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए इन्होंने वोटों को तकसीम कर दिया, कोई इधर कोई इधर उधर, बस जैसे ताश के पत्ते फेंक देते हैं ना। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। जनूबी पंजाब से बड़ी शिकायतें आई हैं चाचा जी, बड़ी शिकायतें। हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है खानपुर से। जी भाईजान, क्या हाल है आपका? जी सही, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत नाल हो सी? जी बिल्कुल ठीक ठाक। दसो आज की होया, की महसूस कीता तुसी? बड़ी बुरी हालत रही है जी। सारा दी किवें? सारा दी आवाम को चक्कर हन, कोई वोट केड़े महल्ले, कोई वोट केड़े महल्ले, सारी आवाम परेशान रही है सही। इसकी वजह की है, क्यों कीता क्यों गया? सही ये उन्होंने बड़े प्लानिंग नाल कीते। जिथा जिथा पीटीआई दा जोर है उन्होंने वो वोटर चाहते इडे उडे सट दिते ताकि वोट ना पै सकन, चुनाचे ये हल्के कमजोर हो जाएं। जी हाँ। लेकिन इससे ये नुकसान भी तो होगा इनका कि वोट उधर फेंक दिए जहां वोटर कम थे। हाँ, ये गाल तो है। क्योंकि वोटर को आप जहां मर्जी फेंकें, उसने पाताल में जाकर भी वोट जरूर डालना था और डाला है। ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਆ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਵਾ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ। हाँ जी चाची, ठीक कह रहे हो। मैंने जरा गल कर लें दो। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੁਲਤਾਨੀ ਨਾਲ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ਬਸ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਸੁਣਾਤੀ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ। अच्छा, नहीं इसके अलावा और क्या क्या कुछ देखा आपने? बस सही ज्यादती है, जुल्म है। अच्छा चाची, ये गल ते दसो, ਕੀ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੋ ਹੋਇਆ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀ? ਕੀ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਭਾਈ? क्यों? ਆ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਫੇਰ, यानी फेयर रहा है? ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ओहो, ਬਸ ਫਿਰ ਦਬਾ ਸੱਟ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। किसने लगाई? ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ। तो जोर किस पार्टी का था? ਆ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਸੀ। फिर? ਬਸ ਆ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤੀ ਆ। वो कैसे जीती है? बल्ले का तो निशान ही नहीं था। ਲੈ ਆ ਬੋਤਲ ਬਾਂਦਰ ਲਿੱਤਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। यानी जिसके ये निशान थे सब जीते हैं। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੌਣ ਆ। तो फिर ਇਹ ਹਰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਜਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह पता? ਲੈ ਮੈਂ ਫੇਰਾ ਤੋਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਰਿਆ, ਬੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਫੂਕਿਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। तो नतायज क्या कह रहे हैं? ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਡਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ। अच्छा, जो सेहतमंद बात थी वो ये कि वोटर निकला बहुत है घर से। माशाल्लाह बड़ा वोटर निकलिया। कितने को फीसद होगा? मैं कहना 90-95% निकलिया वा। ओ नहीं चाचा जी, की गल्लां कर रहे हो? अज तक 55-56 तो ज्यादा नहीं निकलिया, ऐतकी को 60-62% निकले होएगा। ओए उस तो भी ज्यादा सी। चलो बहरहाल अगर 60% सी फिर तो कमाल ही हो गया ना, कमाल ही हो गया। अच्छा जी, लाहौरों एक भाई साहब साडे नाल है, उन्होंने नाल भी गल कर ली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं ग्वाल मंडी दा जी। अच्छा जी, ग्वाल मंडी। हाँ जी। तो यहाँ तो बहुत जोर होगा मियाँ साहब का। हुंदा सी किसी जमाने च, हुण नहीं जी। तो अब किसका जोर था? हुण ते पुलिसां दा जोर सी जी। क्या मतलब? बस जो करा रही सी पुलिस ही करा रही सी जबरदस्ती। तो क्या लगा क्या आपको? लगता तो यही है कि पीटीआई का बड़ा जोर है, पर पुलिस अगे किहदी वाह चलदी है जी। काउंटिंग हुई आपके सामने? हाँ जी, 2-3 वार्डां चों जित्ती है जी पीटीआई। तो इस इलाके में से तो कभी हारी नहीं थी नवाज लीग। ऐतकी फिर देख लो, लेकिन पता कोई नहीं। नहीं, इसका क्या मतलब? पता कोई नहीं। ये रातों रात भी नतीजे बदल सकते ने। हाँ जी। ले इसे गल दा मैनू डर आ जिहड़ी मेरी आवाज नहीं ना निकल रही, आई वजह वा। नहीं चाचा, आज बड़े ही परेशान हो तुम, बहुत परेशान। आ सवेर दा धक्के खाण डिया, हुण भी परेशान ना होवा। ते जे इन्हां ने कोई भैड़ी खबर सुणाती ते फिर तू देखी तमाशा। की मतलब भैड़ी खबर? ओए आई आ ਜਿਹੜੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਸੀਟਾਂ। नहीं तो अगर 100 से ज्यादा ले गई तो फिर तो हुकूमत उनकी बन जाएगी। ਲੈ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਕੋ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਊਂਟਿੰग ਹੋਈ ਆ। अच्छा, जो गैर सरकारी नतायज आ रहे हैं उस हिसाब से तो सारे आज़ाद ही हैं जो जीत रहे हैं। नवाज लीग भी को बहुत उम्दा हालों में नहीं है। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ।
ਐਵੇਂ ਖਾਮਖਾ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। अच्छा जी, अगर नवाज लीग जीत गई तो क्या होगा? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਸ ਦਮਾਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ते जे बुरी तरह हार गई फिर? ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦਮਾਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। आज अमूमी तौर पे पोलिंग कैसी रही है? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਿਗਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਊਗੀ। बाद च होगी से मुराद? ਉਹ ਯਾਨੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਰਨਗੇ। अच्छा ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਵੀ। अच्छा, तो पहले जो रिगिंग हुई वो क्या थी? ਓਏ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਨ ਤੇ ਹਲਫ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿੰਗਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਆ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਵਾ। लेकिन सोशल मीडिया तो आपके साथ है, अक्सरियत आपके साथ है। ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿਗਨਲ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਰਹਿ ਜੂ? ਇਹਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਡਾ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਰਿਆ ਹੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਰਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਸ਼ਰ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੀ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਓਏ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਆ ਪਟਵਾਰ ਖਾਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਆ? ਆ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬੰਬ ਇਹ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਬਸ ਆ ਚਾਚੀ ਤੇਰੀ ਦੇ ਅੱਜ ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਗਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟੁਰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਅੱਜ। ਓਏ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਥਾ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਆਹੋ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਥੋੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਆਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਦ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਚੱਠੂ ਬੱਟਾ ਜਿਹਾ। ਕੌਣ? ਆ ਸਦਰ ਟਰੰਪ, ਹੋਰ ਕੌਣ? ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਇਮਕਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜੱਜ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਮੇ ਨੇ ਲਾਏ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ? ਆ ਬਾਰਕ ਬਾਮਾ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਜੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨੇ ਹੀ ਲਾਏ ਹੋਣ ਨਾ। ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। लेकिन आप इस कदर दुखी क्यों हो रहे हैं? ਅਗਰ ਟਰੰਪ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ। की मतलब? ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। बड़ी दूर दी गोटी नहीं ले आ रहे हो चाचा जी? ਉਹ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਐਕਟਿਆ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। टिकट नहीं हुंदी चाचा जी, उत्थे नॉमिनेशन हुंदी है। ਓਏ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਉਹੀ। अच्छा चाचा बूटा, इस वक्त हमारे साथ हमारे रिसर्चर्स मौजूद हैं, अली हसनैन लाहौर से और शकील अहमद साहब इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सबसे पहले शुरू करेंगे अली हसनैन से, क्योंकि लाहौर में घमसान का रन कहा जा रहा है। क्या पोजीशन रही उमूमी तौर पे आज? वोटिंग बिहेवियर कैसा रहा और आगे से अथॉरिटीज़ ने किस तरह बिहेव किया? थैंक यू सो मच सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे थोड़ा सा आप टाइम देंगे। मैं बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर मैं इस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को देखूं तो सर मैं 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करूंगा। अच्छा। देखिए, पाकिस्तान की एक मकबूल तरीन जमात जिसने 2018 में तकरीबन 2 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब वोट लिए, उनका इंतखाबी निशान छीन लिया गया। हर उम्मीदवार का अलग अलग निशान था। तो पहला मसला ये था कि लोगों को एक बात अली हसनैन, मैं बड़ी मोहब्बत से बयान कर रहा हूँ, डोंट गेट मी रॉन्ग, सिर्फ ये है कि गुज़श्ता वारदातों का रोना नहीं रोना। फैक्चुअल बात करें कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है। सर चले, वो पहला प्रोसेस खत्म हो गया। मैं सिर्फ ये बता रहा था कि जब मैं अपनी बात करूं, मैं जब सुबह सवेरे पहुंचा तो मेरे पीछे जो शख्स खड़ा था उसने मुझे बताया कि भाईजान, अगर आपने फलां पार्टी को वोट करना है तो उनका इंतखाबी निशान ये है। सेकंड बात आती है टर्न आउट के ऊपर। आपके ख्याल में क्या था टर्न आउट, तकरीबन कितना था? अगर मैं ऑन एवरेज आपको बात करूं तो ये 55 to 60% लाहौर के हद तक टर्न आउट मुझे नजर आया। मैंने तकरीबन 3 से 4 हलकों का विजिट किया। ये तो बहुत थोड़ा है। 55 to 60 तो कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई मार काराइयां की जा सके। सर उसके पीछे रीजन शायद ये हो सकती है क्योंकि सुबह सवेरे इंटरनेट बंद, मोबाइल सर्विस बंद। फिर जब टाइम खत्म हुआ, आपको इस चीज का बेहतर आप जानते हैं कि जो अहाताई पोलिंग स्टेशन है, यानी कि 4 दीवारी के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो दे सकते हैं वोट, लेकिन रोड के ऊपर तकरीबन मैंने खुद आंखों से देखा है कि 1500 लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई थी। तो वो तो वोट नहीं कास्ट कर सके ना, क्योंकि वो उस 4 दीवारी के अंदर नहीं आ रहे थे। तो ये भी एक रीजन हो सकती है। तो क्या कोई पाबंदियां, क्या कोई मार धाड़, कोई तोड़ फोड़, कोई ऐसी खबरें तो नहीं आई?
सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लाहौर में सिर्फ एक जगह पे लालक चौक में एक बदमज़गी नजर आई है पूरे लाहौर में। और ये हाँ अगर बात करें कि सिर्फ एक जगह पे हुआ है तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा, इसको हम शगुन कह सकते हैं। कुछ हलकों में ऐसा हुआ है कि जो पोलिंग का वक्त है वो थोड़ा सा लेट शुरू हुआ है, यानी कि अगर 8 बजे का टाइम था तो वो 9 बजे शुरू हुआ है। और आगे से रीजन ये बताई गई है कि जी पोलिंग अमला लेट पहुंचा है या तैयारी अंदर जा रही है। भाईजान, लेकिन जो कराची में हुआ है आलमगीर का हल्का 3 बजे शुरू हुई है। 3 बजे पोलिंग, 3:30 बजे पोलिंग स्टेशन। अब ये तो खुद देखना चाहिए ईसीबी को कि जब ये तो गिनीज बुक वालों को रिकॉर्ड करनी चाहिए चीज, ये तो रिकॉर्ड तोड़ा गया है। जी बिल्कुल सर, सिर्फ 1.5 घंटा उनके पास टाइम था कि वो अपना वोट कास्ट कर सके। आप खुद देखेंगे वहां पे क्या टर्नआउट होगा या क्या लोग निकलेंगे। अच्छा, और ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी कोई इस तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहा? कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं मतलब कि ये नहीं कि मैं पीटीआई के हक में बात कर रहा हूँ। लोग जो है वो, उनको अगर कोई नजर आ रहा था कि चाहे वो पीएमएलएन का ही झंडा क्यों लगा हुआ है, तो या पीएमएलएन वाले अगर पीटीआई का झंडा, वो तो कहीं नजर ही नहीं आया। बट ये है कि लोग जो है वो ट्रैवल कर रहे थे और आगे से किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं थी। और मैंने इस हद तक भी देखा है कि एक पार्टी के वोटर्स दूसरी जगह पे कैंप से जाके उन्होंने पर्ची बनवाई, वहां जा बैठ के खाना खाया, इवन बिरयानी तकसीम हो रही थी। अगर मैं अपने हल्के की बात करूं, जिस पोलिंग स्टेशन में मैं गया हूं, मैंने भी आती जो है ना वो बिरयानी का डब्बा खाया है। लेकिन जो है कि वाह, लोगों ने बिरयानी भी खाई है और वोट अपनी मर्जी के उम्मीदवार को दिया। लेकिन नमक हलाली आपसे एक्सपेक्टेड है। अगर आपने उनकी बिरयानी खाई है तो फिर सर आप बिरयानी के जो पैसे, सर बिरयानी के जो पैसे हैं वो हमारे ही सर जेब से गए हुए हैं, हमने ही टैक्स अदा किए हुए हैं सर वो। खैर, शकील साहब की तरफ चलते हैं। जी शकील साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, हाउ इज इस्लामाबाद ट्रीटिंग यू टुडे? इस्लामाबाद इज फाइन, इट्स ट्रीटिंग मी वेल। और अच्छी बात है, जैसे अली ने भी कहा कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, बहुत आराम से पोलिंग हुई। कोई किसी ने शिकायत नहीं की कि जी फलां पार्टी धांधली कर रही है, फलां नहीं कर रही। तो उस लिहाज से बड़ा खुश आइंद था। और इस्लामाबाद में भी मैंने पूछा पोलिंग स्टेशन के स्टाफ से कि कैसा है टर्न आउट, तो उनका अच्छा है। तो उनका अंदाजा उस वक्त तक का था कोई 2 बजे के करीब, 2:15 के 50% के करीब होगा। 50% टर्न आउट इन इस्लामाबाद इज रिमार्केबल। या तो बहरहाल अच्छा अच्छा माहौल में, खुशगवार माहौल में पोलिंग हुई, बड़ी खुश आइंद बात है। और पिंडी से जो खबरें हैं कि शहरयार रियाज जो हैं वो काफी टफ टाइम दे रहे हैं हनीफ अब्बासी को, और शेख रशीद जो हैं वो तीसरे नंबर पे हैं। ये एक बड़ा बड़ा अपसेट होगा। अच्छा, तो कंपटीशन की उमूमी सूरत हाल कैसी रही? इस्लामाबाद में भी पीएमएलएन और पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं, जिनका लोगों को पता नहीं चलता कि कौन सा एक्चुअली उम्मीदवार है, लेकिन उन्हीं का मुकाबला है। और जमात इस्लामी के मियां असलम के सबसे ज्यादा बैनर नजर आते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक दफा इलेक्शन जीते हैं 2002 में। अच्छा जी, जनूबी पंजाब की सूरत हाल क्या है? मेरी इत्तला मैं पहले बता दूं कि मैंने जब कोई तकरीबन 3:30-4 बजे पूछा था तो अहमदपुर और बहावलपुर के दीगर इलाकों में, यानी अहमदपुर शर्किया की बात कर रहा हूँ, पुरसकून पोलिंग थी। कोई भगदड़, कोई शोर शराबा, कोई शिकायत अपेरेंटली नहीं थी। आप क्या कहते हैं? जी सर बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और टर्न आउट की जहां तक, मैं लाहौर में बैठा हूं, मेरे लाहौर का अगर आपको 55 to 60% का है, तो साउथ पंजाब का आई कैन डेफिनेटली से कि इससे ज्यादा टर्न आउट था। जी, जो इससे ज्यादा कि हैरान बात थी। हालांकि वो कहा जाता है कि जी वहां सहूलियात उस तरह नहीं है, बैकवर्ड एरिया है, तालीम का फुकदान है, लेकिन टर्न आउट बहुत ज्यादा था। खास तौर पे राजनपुर का एरिया, आप उस एरिया को आप जानते हैं कि वहां पे किस किस्म का वडेरा निजाम है। राजनपुर हो गया, डेरा गाजी खान हो गया, ये जो एरियाज हैं यहाँ वाह पे वाह टर्न आउट बहुत ज्यादा था। और यहाँ। दूसरी बात ये कि सर सॉरी मैं बात कंप्लीट कर जी लूं। जी जी। दूसरी बात ये कि आप देखिएगा कि जब ये साउथ पंजाब के जो रिजल्ट्स होंगे, ये आपको पूरे पंजाब के रिजल्ट्स में फर्क नजर आएगा आपको कि साउथ पंजाब का जो रिजल्ट है, जो पूरे जितने भी एरियाज हैं, डेफिनेटली इनका असर नजर आएगा सेंटर के ऊपर। कोटद्दू की क्या खबर है? सर कोटद्दू में जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं शब्बीर कुरैशी, वो 2018 में आजाद जीत के पीटीआई में शामिल हुए थे। इस दफा फिर जाहिर है आजाद ही वो लड़ रहे हैं। पूरे पंजाब में अगर हम बात करें, सबसे बड़े जलसे, सबसे तगड़े जलसे शब्बीर कुरैशी ने किए। तो वहां पे तो मैं कोटद्दू की बात करूं, NA 179, वहां तो आंखें बंद करके शब्बीर कुरैशी ने आराम से वो सीट जीत जानी है। अच्छा जी, अभी थोड़ी देर में हतमी नतायज भी आने शुरू हो जाएंगे। खोसा साहब का बड़ा कांटे का मुकाबला चल रहा है साद रफीक के साथ।
लाहौर में, जी क्या सर, खबरें हैं? बिल्कुल ये बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं। ये जो हलका है साद रफीक का खोसा साहब के साथ, यहाँ पे आपको याद होगा कि पहले खान साहब जब लड़ते थे तो वो भी बड़ा चैलेंज किया करते थे, लेकिन फिर भी ओके सोके होके 100 200 1000 200 वोटों के साथ कुछ ना कुछ मामला बेहतर हो जाता था। लेकिन इस वक्त भी मुझे यही सूरत है, अभी तक जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो नेक टू नेक ही मुकाबला चल रहा है। हालांकि खोसा साहब आपको पता है कि वो पहले पीपल्स पार्टी के साथ, फिर अब उनको पीटीआई ने सपोर्ट किया, और खोसा साहब का एज सच साद रफीक के मुकाबले में अगर हम बात करें तो साद रफीक का आबाई हल्का है, शुरू से यहाँ से जीतते जा रहे हैं। लेकिन अगर ये सीट साद रफीक हारते हैं, मेरे ख्याल से ये नून लीग के लिए लम्हा फिक्री है कि वो साद रफीक वाली सीट भी हार चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, ये लम्हा फिक्रिया से बात आगे बढ़ जाएगी अगर हारे तो। जी जी। लेकिन हनूज दिल्ली दूरस्त, लेकिन सबसे अहम जो खबर है ना लाहौर से, वो है बिलावल का हल्का। बिलावल इज डूइंग रिमार्केबली वेल। यस, NA 127, जहां से पीटीआई के जो आजाद उम्मीदवार थे जहीर खोखर साहब, उनका अभी तक मतलब नाम ही कोई नहीं ले रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुकाबले के ऊपर जब टीवी स्क्रीन के ऊपर नाम चलता है बिलावल बा मुकाबला अता तारड़, लेकिन अता तारड़ साहब का और बिलावल का जो मार्जिन है वो 300 गुना है। यानी कि बिलावल साहब, मैं बहुत हैरान हूं, मुझे इस चीज पे हैरानी हो रही है कि लाहौर जैसे हल्के से वो अता तारड़ साहब को बड़ा लीड के साथ हरा रहे हैं। हाँ, ये हल्का एक्चुअली वो है गालबन जो किसी जमाने में एतजाज का हल्का भी था, ऐसा ही है। सर वो आई एम नॉट श्योर, मेरे ख्याल से वो शायद अयाज सादिक वाला हल्का है एतजाज अहसन साहब का, जहां तक मुझे याद पड़ता है। क्योंकि इन्हीं में से एक हल्का था जहां से भुट्टो साहब भी लड़े थे और वो जीते थे। शकील साहब बेहतर बता और सकते उन्होंने, हैं। जी भुट्टो साहब ने जावेद इकबाल, जस्टिस जावेद इकबाल जो बाद में जस्टिस बने, भुट्टो साहब ने उनको जस्टिस बनाया था, वो वहां से उनको हराया था भुट्टो साहब ने। और उनकी दोस्ती भी बड़ी थी एक दूसरे से। जस्टिस जावेद इकबाल को हराया था, ये कब की बात है? 70 में? जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये वही हल्का नहीं है शकील साहब जहां से बिलावल इस वक्त लड़ रहा है? मतलब है मोर और लेस, क्योंकि हल्का बंदियां तो बाद में बहुत तब्दील हो गई थी ना। अब तो बहुत बहुत चेंजेस हो गई हैं। मुझे याद है जब इलेक्ट हुए थे ना एतजाज हसन, तो NA 93 था इसका नंबर। NA 93, लाहौर 3 था गालबन, या लाहौर 4, आई एम नॉट श्योर, लेकिन 93 आई एम 100% श्योर। तो अब तो उसकी जून ही बदल गई है। अब तो पता नहीं क्या नक्शाबंदियां और हल्का बंदियां हो गई। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, बहरहाल बहुत ही अपसेट है ये अगर बिलावल जो है लाहौर से जीतते हैं, क्योंकि सर अगर ये बिलावल को, शकील साहब अगर बिलावल को लाहौर उचेचा लाया गया है तो पक्के पैरों पे लाया गया होगा, ऐसे तो नहीं लाया जा सकता। तो लेकिन इलेक्शन तो खैर फिर भी इलेक्शन होता है, तो पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो इतने मार्जिन से जीत सकते हैं। और सर जो उस हल्के में जितने भी सर्वेस हुए हैं, मैंने खुद वो लाइव देखे हैं, मैं आपको नाम बता सकता हूं उन साफियों का जिनके मैंने वो सर्वेस देखे हैं। वहां पे बिलावल का मैक्सिमम मैंने जो नाम सुने हैं पूरे 1 घंटे की ट्रांसमिशन में, वो 1 या 2 वोट्स के अलावा इससे ज्यादा मैंने नाम नहीं सुना कि हम बिलावल को वोट देंगे। इस हल्के से बिलावल अगर जीत जाए तो ये वाकई बहुत बड़ी हैरानी की बात है मेरे लिए। नहीं, ऐसे इलेक्शन में जो असली वोटर्स हैं वो बताया नहीं करते कि हम देंगे, वो बाद में अपना काम करते हैं। और अपेरेंटली बिलावल जीतता नजर आ रहा है, और ये बड़ी हैरत अंगेज बात होगी कि लाहौर से आके, और ये सिंबॉलिक बड़ी है, इसकी सिग्निफिकेंस बड़ी सिंबॉलिक है। ये सीट बाहर सूरत चाहिए थी पीपल्स पार्टी को, अदरवाइज काफी फरागत थी पंजाब में उनकी। मैं सिर्फ शकील साहब से वो पूछना चाह रहा था, असद उमर का जो हल्का है, जाहिर है वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, 13 में जीते 18 में जीते, तो अभी इस्लामाबाद में क्या पोजीशन है असद उमर के हल्के से? यहाँ पे जी जो शकील है साहब। अंजुम अकील हैं पीपल्स PMLN के, जी और उसके मुकाबले में है PTI के हैं आमिर मुगल। जी जी। तो ये भी पुराने खिलाड़ी हैं, अकील अंजुम भी। ठीक है। तो ये मुकाबला मेरे ख्याल में काफी कांटे का मुकाबला होगा। अच्छा चलें, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आप हमारे साथ रहिएगा, दीगर मसरूफियात से कम आज का दिन जो है वो गुरेज करें। थैंक यू वेरी मच। जी चाचा जी, हाँ भी सुना। सुन लिया ना आपने क्या सूरत अहवाल थी? ਓਏ ਉਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਵਾ। वो कैसे? ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਵਾ, WhatsApp ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਵਾ। नहीं तो इसके असरात क्या होंगे? ਲਾ ਅਸਰਾਤ ਇਹ ਹੀ ਹੋਣਗੇ,
ਆ ਫਾਰਮ 45 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਊਗਾ। हाँ जी, फार्म 45 का तस्करा कर रहे हैं मैंगल साहब भी। अख्तर मैंगल ने बहुत डिटेल्ड, बहुत पहले इसके ऊपर तबसरा कर दिया था कि शाम ढले भी बहाल नहीं हुई थी इंटरनेट सर्विस, तो इसका मतलब है मसाइल काफ़ी ज़्यादा बाद में क्रिएट होंगे। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਓਏ, जी चाचा जी, ਇਹ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। क्या मतलब? ਜੇ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। खैर ये तो वक्त बताएगा हजम होता है कि नहीं होता। गुज़श्ता कई 100 साल से तो ऐसा ही होता नज़र आ रहा है। अच्छा जी, हमारे साथ इस वक्त डमी म्यूज़ियम से एक नामवर सहाफ़ी मौजूद हैं। क्या हाल है भाईजान आपका? मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं, आपका हाल कैसा है? अच्छा जी, आज कैसा रहा उमूमी बिहेवियर, कैसा रहा हलकों का? मैं जिस हलके में गया, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੋਣੀ ਆ। बुजुर्गों आप चुप रहें। वैसे चाचा जी, आप इनकी बात में दखल ना दें। ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣਾ। अच्छा बात कर रहे थे जी। मैं जिस हलके में गया वहाँ मैंने देखा खरबूजों की रेहड़ियाँ काफ़ी लगी थी ਕਿਉਂ ਜੀ? चाचा जी आप बात कर रहे थे उन्हें। और पुलिस वर्करों के पीछे भाग दौड़ कर रही थी और वो जो खरबूजों की रेहड़ियाँ थी वो उलट गई। हमारी टीम ने बैठकर पहले खरबूजे खाए, फिर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। वो बाहर दरवाजे तक छोड़ने आई और हम घर आ गए। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਬਸਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ। नजम कौन सी? अब्बा काम पे जाएगा, रोटी लेकर आएगा, सारा टप्पर खाएगा, शोर मचाएगा। अच्छा जी, उमूमी तौर पे मैं महसूस करता हूँ कि टर्नआउट बहुत अच्छा था। इससे भी अच्छा होता अगर इंटरनेट के मामलात, ये मसाइल दरपेश ना होते। लेकिन ये ऐसा था कि बड़ी आसानी के साथ जो नवाज़ लीगी ख्वाब था उसे रेज़ा रेज़ा किया जा सकता था अगर बाहर लगी कतारों को वोट डालने की इजाज़त दी जाती। चाचा बूटा देखो कितनी आसानी के साथ ये मामला हल कर लिया गया कि भाई आप आ तो गए हैं घरों से, लेकिन पोलिंग टाइम ख़त्म हो गया, अहाते से आप बाहर हैं और कानून ये कहता है कि अहाते से बाहर जो होगा वो वोट नहीं डाल सकेगा एक ख़ास टाइम के बाद। तो वो सारे क्या करें बेचारे। ਉਹ ਬਸ ਆਹੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਵਾ ਸਾਰਾ, ਆਹੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਣ ਡਏ ਆ। अच्छा जी, आपसे बात करते हैं, अगर खरबूजों से कोई फुर्सत हुई हो आपको तो आप जवाब दीजिए। जी हुक्म करें। ਦੋ ਚਾਰ ਦਵਾਣੇ ਵੀ ਖਾ ਲਾ। अच्छा चाचा बात करने दिया करो, आप बीच में लुकमा ना दिया करें। ਉਹ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਮਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵੀ ਲੁਕਮੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। अच्छा आप कब रहे हैं उनके साथ इतने, आपको कैसे पता है? ਉਹ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਵਾਂ। तो शो में सिर्फ लुकमे ही होते हैं। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀਨ ਹੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। वो क्यों? ਬਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸਾਲਿਆ, ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। अच्छा जी, आप कुछ कह रहे थे। मैंने क्या कहना। आप ये बताइए कि कौन सा इलेक्शन आपको बहुत हैरान कर रहा है ताहाल? देखें अभी रिजल्ट तो फाइनल नहीं आए, लेकिन 2 हलकों ने मुझे बहुत हैरान किया है। कौन से हलकों ने आपको हैरान किया है? एक तो बिलावल का हलका लाहौर से और दूसरे हलके लोधरा वाले दोनों जहांगीर तरीन के। हाँ, लेकिन जीत वो जाएगा, एक से तो जरूर जीत जाएगा। ਓਏ ਆਹੋ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਲਕਾ ਵਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਵਾਉਣਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। तो कम की पवाना है? ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ। नहीं, मुझे थोड़ा सा पता है, लेकिन आप एक्सप्लेन कर दें। ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਓਏ। ਅਸਲ ਫਿਕਰ ਇਹਦੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਆ। अच्छा जी। ਔਰ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਵਾ। अच्छा, पीटीआई ने तो खैर अपनी लागतबाजी की वजह से, जाती रंजिश की वजह से जोर लगाया होगा। नून लीग को क्या पड़ी थी? ਓਏ ਨੂਨ ਲੀग ਨੂੰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪਈ ਆ। अच्छा जी, आप बताएं, आप क्या कहते हैं? बुजुर्गवार शायद ये कहना चाह रहे हैं कि जहांगीर तरीन भी अपने आप को वजीर आज़म ही समझ रहे हैं। क्यों जी, आप ये समझते हैं? ਓਏ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਧਰੋਂ ਪਰਚੀ ਲੈ ਲਈ ਹੋਣੀ ਆ। हर कोई तो कहता फिरता भी हमारी बात हो चुकी है। अच्छा चाचा, ये बताएं किसी एक नतीजे ने आपको हैरान किया हो? बई हैरान होण मैनू किसी ने नहीं कीता, स्वाद मैनू इको ही हल्के दा आया। वो कौन सा? आ राणा नहीं साडा लैलपुरी। राणा कौन सा? राणा सनाउल्ला? हाँ जी। तो क्या हुआ उसे?
ओए अपनी यूसी जो हार गया। तो इस पे इतना हैरान हो रहे हैं। ओए हैरान नहीं होना, ओए यूसी अपना घर हुंदा, अपना महल्ला हुंदा। वैसे वाकई बड़ी हैरत की बल्कि शर्म की बात है कि लेकिन फैसलाबाद में तो ओहो एक अजीब सेंटिमेंट है जो देखने को मिल रहा है। एक फैसलाबाद, दूसरा साउथ पंजाब। ओए मेरे नाल तेनू भी किते भेज दे, किते रोटी पानी खावे, हजे तो खरबूजियां ते गुजारा करन डिया वा।